My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on arithmetic for CAT 2025. And if you have not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as join the Telegram channel Mathological. So first question of this session, this is a simple question if done right. Pause the video and solve it. In a school, 60% of the students are boys, 80% of the boys play outdoor games, 75% of the boys playing outdoor games play football, and 83.33% of the boys playing football also play cricket. So you have to find the minimum number of boys in the school that play cricket. 60% students are boys. Okay? So 60% of the total students, that is equal to boys. 60% is 3 by 5. So if total number of students are n, so 60% of them will be 3 by 5. Okay. Then 80% of these boys play outdoor games and 80% is 4 by 5. So this multiplied by 4 by 5. This many number of boys play outdoor games. That is also fine. Now 75% of the boys that play outdoor games and 75% of this given number play football. The number of players of football will be this multiplied by 75%, which is 3 by 4. And in all cases, we'll be multiplying the most simplified fraction. Okay. At last, 83.33% of the boys playing football also play cricket. So 83.33% is 5 by 6. So out of this total, 5 by 6 of these boys play cricket as well. Question kya hai, find the minimum number of boys in the school that play cricket. Ultimately, our purpose is to find minimum number of boys that play cricket. Okay, so if we have to find out minimum number of boys, so we'll assume that anyone who is not playing football is not playing cricket. So any student that is not playing football is not playing cricket, so that number is 0. वो number हमने 0 कर दिया. So only those students who also play football play cricket. So ultimately हमारा purpose होगा to find out this value. 83.33% of the boys playing football that also play cricket. That will be the minimum value of total number of cricket players. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 3 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन इस 2 से यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया हमारा 3n/10. रिमेनिंग नंबर इज 3n/10 और हमें अल्टीमेटली इस नंबर को मिनिमाइज करना है. सो इफ दिस नंबर हैज टू बी मिनिमाइज्ड, सो इन सच ए केस n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10. And if n is a multiple of 10, so minimum value can be n का minimum value equal to 10. We can place 10. So 3 into 10 divided by 10 comes out to be equal to 3. This value comes out to be equal to 3. यानी कि minimum number of boys in the school that play cricket, that should be equal to 3. But क्या ये correct answer होगा? Will that be a correct answer? क्या हमने मेथड प्रॉपरली अप्लाई किया है? देखो इस मेथड में गलती क्या है, एरर क्या है कि इफ वी एज्यूम दैट ठीक है अपना आंसर इज 3. So in that case, since 83.33% of the boys playing football also play cricket, so this is 5 by 6 of total number of boys that play football. And if this is 5 by 6 of total number of boys that play football, so in such case, number of boys that play football will be equal to 3 into 6 by 5, which is 18 by 5, and which is not an integer. ये value integer ही नहीं आ रहा है. So we have to ensure that at all stages, number of students should be integer. वो हमारे इंश्योर करना पड़ेगा. तो दैट इज वाई ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगा. दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर दैट. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? एज्यूम करेंगे अगेन कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल दैट इज इक्वल टू 10, एंड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नहीं 10 नहीं n, इफ दैट इज इक्वल टू n, तो 60% ऑफ दोज आर बॉयज. तो 60% यानी कि 3n/5 विल बी बॉयज, and into 3/5, 3n/5 will be boys. Now 80% of these boys play outdoor games. So 80% implies 4/5 of this value. So 3 into 4, 12n/25. This will be boys who play outdoor games. Now 75% of these boys playing outdoor games also play football. यानी कि 3/5 of this number also plays, 3/4 of this number also plays football. So 12 into 3/4, 36/4, यानी 9n/25. They play football. And at last, 83.33% of this number also play cricket. So multiplied by 5 by 6, so 45 by 150, which ultimately becomes 3n/10.
तो दिस मच नंबर प्लेज क्रिकेट हु आर ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले क्रिकेट, सो दिस शुड बी द वैल्यू, यानी कि वी आर एज्यूमिंग, our assumption is that those students who play cricket but not football, that is equal to 0. Students who play only cricket but not football, that number is 0. That is our assumption. ठीक है, so this number has to be minimized. पर जब हमने इस तरह से लिख दिया, now we know कि n should be an integer, 3n by 5 should be an integer, 12n by 25 should be an integer, and 9n by 25 this should also be an integer. यानी all these values have to be integer, and if they have to be integer, so n should be a multiple of 25, n should also be a multiple of 10, again 25, 5. So n should be a multiple of LCM of all these values in fraction. LCM of 5, 10, 25. अच्छा, ये सारे के सारे केसेस में ध्यान रखना है कि अवर फ्रैक्शन शुड बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12n by 25 को अगर हमने लिख दिया होता 24n by 50, तो गड़बड़ हो जाता मामला. ठीक है, या फिर 48n by 100 लिख देते तो लगता है n 100 का मल्टीपल होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब इसको. दैट इज वाई ऑल दीज फ्रैक्शन शुड बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो n should be a multiple of LCM of 5, 10 and 25, यानी कि n should be a multiple of 50. And if that has to be the case, n का minimum value will be equal to 50. And if n minimum is 50, तो 3n by 10 का value will be 3 into 50 by 10 and hence equal to 15. So our answer will be that 15 is the minimum number of boys in the school that play cricket. और इस केस में सारे numbers identify कर सकते हो. All values will come out to be integer only because n is 50. ठीक है, n comes out to be 50. 3n by 5 will be 30. The 30 are boys, 28 will be girls, and 12n by 25 will be 24. 24 play outdoor games, 24 boys play outdoor games, and then 9n by 25 will be 18. 18 boys play football, and at last 15 boys play cricket. So all these values will be integer अगर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. 12 men and 16 women can complete a work in 15 days. Another group of 5 men and 9 women can complete the same work in n days such that n is a product of two consecutive natural numbers. So we have to find the number of days taken by 8 men and 7 women to complete the same work working alone. So what will be number of days taken by 8 men and 7 women working complete the work working alone, नहीं working together. जब इतने लोग हैं तो कहाँ alone है. ठीक है, ओके. सो पहला केस हमें गिवन है कि 12 men and 16 women are completing a work in 15 days. So we can assume efficiency of man to be m and efficiency of woman to be w. Yeah, one day का work of man is equal to m and one day का work of woman is equal to w. So our work becomes equal to 15 days का work of 12 men plus 16 women. And then question is saying another group of 5 men and 9 women can complete the same work in n days. This will also be equal to n days का work of 5 men and 9 women. These two are equal, but n is an unknown value. The only thing that we know about n is that n is a product of two consecutive natural numbers. So n can be any value. अब ऐसे केस में क्या करेंगे जहाँ पे कि हमें n फाइंड आउट करना है और कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन दैट n इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive natural numbers. तो यहाँ पे we will be first of all finding out the range for values of n. n का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, what can be minimum value of n and what can be maximum value of n. n will be lying between two values, minimum possible value and maximum possible value. और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में कंडीशन अप्लाई कर देंगे. सो विल फाइंड आउट द यूनिक वैल्यू ऑफ n. अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो एक्सट्रीम केसेस लेंगे जब भी कभी हमें रेंज फाइंड आउट करना होगा टाइम एंड वर्क वाले केसेस में. सो विल बी टेकिंग एक्सट्रीम केसेस. अब एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी हमें मैन का और वुमेन का पता नहीं है, सो हमें एज्यूम करना है. सो वन केस विल बी टेकिंग जहाँ पे विल बी एज्यूमिंग दैट एफिशिएंसी ऑफ वुमन इज इक्वल टू 0. ठीक है, वुमन इज वर्किंग ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. एंड सेकंड केस विल बी एज्यूमिंग वेयर एफिशिएंसी ऑफ मैन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मान लेंगे. तो पहला केस लेते हैं. इन द फर्स्ट केस विल बी एज्यूमिंग दैट एफिशिएंसी ऑफ वुमन इज इक्वल टू 0. तो अगर वुमन का वर्क 0 हो जाता है तो अल्टीमेटली दिस पार्ट विल बी 0 ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 15 into 12m and right hand side becomes n into 5m. So n comes out to be equal to 36.
ऑब्वियसली एन विल नॉट बी इक्वल टू 36 बिकॉज वुमन का एफिशिएंसी 0 तो नहीं है, ठीक है, बट ये एक्सट्रीम वैल्यू है एन का. सेकेंड सिनेरियो विल बी व्हेन वी विल बी टेकिंग एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 0. अभी लॉजिक भी समझेंगे इसका, पर पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 0 ले लिया हमने. अब जैसे ही एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 0 लिया, तो now this part is valid, this is not 0, but this part will be 0 on both sides. So now left hand side becomes 15 into 16w and right hand side will be n into 9w. तो w से w कैंसिल आउट हो गया और हमारा n का वैल्यू आ गया 15 into 16 by 9 which will be equal to 80 by 3. 80 by 3 will be 26.66 days almost. So our n का value will be lying between 36 and 26.66. Minimum value will be 26.66 and maximum value will be 36. So n will be somewhere between these two values. Now we'll be applying the additional condition. Additional condition, n is a product of two consecutive natural numbers. We have to find out product of two consecutive natural numbers such that the product lies between 26.66 and 36. अगर हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो 4 into 5 becomes equal to 20. 5 into 6 becomes equal to 30. And 6 into 7 becomes equal to 42. So there is only one value of two consecutive natural numbers, the product of two consecutive natural numbers, that is lying between 26.66 and 36, that is 30. So that clarifies that n must be equal to 30 only. n is equal to 30 आ गया यहाँ से, और जैसे n equal to 30 आ गया तो अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे वापस से. The equation becomes 15 times 12m plus 16w, that is equal to 30 times 5m plus 9w. 15 से गया 2 बार, अल्टीमेटली आ गया 12m minus 10m, तो 2m is equal to 16m लेफ्ट हैंड साइड में 18, 18 minus 2, 18 minus 16, तो 2w, यानी कि यहाँ से m इक्वल टू w आ गया. यानी कि वर्क एफिशिएंसी ऑफ मैन एज वेल एज वुमन इज इक्वल. दोनों की एफिशिएंसी इक्वल आ गई, और जब इक्वल आ गई तो दोनों को 1 मान लेते हैं, दोनों को 1 ही एज्यूम कर लेते हैं. और जैसे ही दोनों की एफिशिएंसी को 1 एज्यूम करेंगे, हमारा वर्क का वैल्यू हमें मिल जाएगा. वर्क विल बी इक्वल टू 15 into 12 into 1 plus 16 into 1. So 12 plus 16. So 15 into 28, that is our work. In question we are asking number of days taken by 8 men and 7 women. Number of days taken by 8 men and 7 women. तो 8 men का एफिशिएंसी कितना होगा, मिला के होगा 8, 7 men का 7, तो 8 plus 7 is total efficiency, यानी कि work done in 1 day is 15 units and total work is 15 into 28. So time taken will be equal to 15 into 28 divided by 15, which is equal to 28 days. The time taken by 8 men and 7 men to complete the same work will be equal to 28 days. क्या लॉजिक क्लियर है? ओके, अब ये समझते हैं कि हम एक्सट्रीम केसेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्यों वुमेन का एफिशिएंसी 0 कर रहे हैं या मैन का एफिशिएंसी 0 कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे का. ओके, इस बात को समझ लेते हैं शॉर्ट में, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो फ्रेश पेज पे लिखते हैं. तो वर्क वॉज इक्वल टू 15 into 12m plus 16w, and this was also equal to n into 5m plus 9w. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक साइड का समझ लेते हैं, दूसरी साइड का तुम अपने पे देख लेना, ठीक है. सो देखो, अगर हम कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द नंबर ऑफ मेन इन द फर्स्ट केस, दैट इज 12m, एंड नंबर ऑफ मेन इन द सेकंड केस, दैट इज 5m. तो नंबर ऑफ मेन इज इन द फर्स्ट केस इज 12 एंड इन द सेकंड केस इज 5. यानी कि नंबर ऑफ मेन इज बेसिकली 5/12 इन द सेकंड केस, इजंट इट सो. और अगर नंबर ऑफ वुमेन को भी 5/12 कर दें, तब चीज़ें कंपेरेबल हो जाएंगी. अगर नंबर ऑफ वुमेन को भी 5/12 कर दें, 5/12 ऑफ 16, so that becomes 16 into 5/12, यानी कि 20/3, 20/3 हो जाएगा. तो वहाँ से मैं n का वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 15 into 12m plus 16w, एंड राइट हैंड साइड में वैल्यू इज n into 5m, which is 5/12 of 12m plus 20/3w. ओके, नाउ रेशियो अब तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मेन इज 5/12 of 12, नंबर ऑफ वुमेन इज ऑल्सो 5/12 of 16. अब स्ट्रेट अवे इसको काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज 12 टाइम्स एंड दिस इज 5 टाइम्स. अच्छा, वर्क क्या होगा हमारा इस केस में? देखो, पहले केस में हमारा ये जो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, दिस इक्वालिटी इज फॉर 15 टाइम्स ऑफ 15 डेज का वर्क ऑफ 12 men and 16 women, एंड दैट इज इक्वल टू n डेज का वर्क ऑफ 5 men and 9 women. हमने क्या किया, नंबर ऑफ मेन को तो इंटैक्ट रखा है, दैट इज इक्वल टू 5,
m, ठीक है, यहाँ पे n1 कर देते हैं, n की बजाय n1 कर देते हैं, ठीक है। सो n1 नंबर ऑफ डेज लगेंगे फॉर 5 men and 20/3 women. Now 20/3 women, this is less than 9 women. तो हमने 9 women से कम women लिया है, तो राइट हैंड साइड में इन एक्चुअल सिनारियो, इन एक्चुअल इक्वेशन, नंबर ऑफ मैन तो इक्वल है हमारा, जो हमने नया कंडीशन लिया 5m के, बट नंबर ऑफ वुमेन लेसर लिया है। तो अगर नंबर ऑफ वुमेन हमने कम लिया है तो एफिशिएंसी ऑन द राइट हैंड साइड इज लेसर, तो टाइम क्या लगेगा हमारा, टाइम ज्यादा लगेगा, इजंट इट सो। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगा, n1 विल बी कंपैरेटिवली हायर देन, क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये वक्त तो हमारा इक्वल होगा, बट अगर हम यहाँ पे n ही रखें, इंस्टेड नंबर ऑफ डेज को n ही रखें, तो क्या ये अप्रिशिएट कर पाओगे कि अगर हम नंबर ऑफ डेज n ही रखते हैं और नंबर ऑफ वुमेन को हमने डिक्रीज किया है, तो वर्क ऑन द राइट हैंड साइड विल बी लेसर, वर्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी हायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का वर्क तो कंप्लीट वर्क है, बट राइट हैंड साइड नंबर ऑफ वुमेन हमने कम रखा है, तो दिस वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर। अगर ये बात समझ में आ गई तो अल्टीमेटली यहां से हमें क्या मिल गया कि 15/12/5, तो n विल बी लेस देन 36 एंड लेस देन 36 आ गया। सिमिलरली हम सेकंड केस में क्या लेंगे, सेकंड केस में देखेंगे नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो, तो नंबर ऑफ वुमेन है यहाँ पे हमारा, कलर दूसरा चूज करते हैं, नंबर ऑफ वुमेन हमारा 16 से 9 हुआ है, यानी कि दैट इज 9/16। सेम वैल्यू लेंगे हम फॉर नंबर ऑफ मेन एज वेल, 9/16 करेंगे, 12 का 9/16 विल बी 9 इंटू 3/4, 27/4। नंबर ऑफ मेन को कर देंगे 27/4, विच इज लार्जर देन 5 से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, तो इस बार हमारा राइट हैंड साइड विल बी लार्जर देन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस बार हमारा राइट हैंड साइड विल बी लार्जर देन लेफ्ट हैंड साइड। 15 इंटू 12m प्लस 16w, राइट हैंड साइड में n ही डेज वर्क कराएंगे, बट दिस टाइम वी हैव 27/4 men and 9 women. So since number of men in this case are larger than our equality वाला केस, तो definitely right hand side will be larger. So our actual work will be less than this work. तो this time we'll be getting n का वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या था 9/16 हुआ था ना, ठीक है। सो दिस वॉज इक्वल टू 16 एंड दिस वॉज इक्वल टू 9, n will be greater than 15 into 16/9 और n will be greater than 80/3। तो क्या ये लॉजिक क्लियर है कि क्यों हम एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहे हैं और किस तरह से हम जीरो मान के वैल्यूज एज्यूम कर रहे थे, बट दिस इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड दैट। बट एग्जाम कंडीशंस में इतना थोड़ी करेंगे, स्ट्रेट अवे हम एक केस में वुमेन का एफिशिएंसी जीरो मान लेंगे, एक केस में मेन का एफिशिएंसी जीरो मान लेंगे, या ऐसा कोई और केस आएगा, एक और एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तो वहाँ पे फिर उस तरह से चीज़ों को हमेशा एक्सट्रीम केसेस में अप्रोच कर लेंगे, तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी क्वेश्चन में, बिकॉज रिकरिंगली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सो उनको समझना जरूरी है। और ऐसे केसेस में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का इन जनरल कहीं पे भी विल ऑलवेज बी टेकिंग एक्सट्रीम केसेस, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस हमें एक रेंज मिल जाएगा, रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स, और फिर वहाँ से जो हमारा एक्चुअल आंसर है उसको आइडेंटिफाई करना हमेशा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड आई बिलीव कि ये सब बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो अपने एंड पे। कमेंट जरूर मेंशन करना कि तुम्हें सेशन में से सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो भी कमेंट जरूर मेंशन करना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और डिसऑनेस्ट मिल्क वैन वाले सेशन अगर तुमने चेकआउट नहीं किए हैं तो उन पर एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक पिन कर दूंगा टॉप पे, ठीक है। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्क मैन सेल्स मिल्क एट 20% हायर रेट देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्क मैन है दैट सेल्स मिल्क एट 20% हायर रेट देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सारे जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं सबको इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं, सबके हिसाब से देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा फॉर अ स्टेटमेंट, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट दैट is written in such a question will always be identifying ki what will be the effect of that statement on our profit, on the profit of dishonest milkman, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि he sells milk at a 20% higher rate than the cost price, तो उसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा, 20% हायर रेट यानी कि 1/5 ज्यादा। तो अगर 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस होता तो 6 रुपीज पे सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, इफेक्टिवली 5:6 होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट पे असर क्या आएगा, 5:6 का असर आएगा। अगर 5 इज कॉस्ट प्राइस तो 6 विल बी सेलिंग प्राइस। सेकंड सिनेरियो, ही यूजेस अ फॉल्टी मेजरिंग मग विद अ वॉल्यूम ऑफ 900 ml व्हिच ही यूजेस टू सेल 1000 ml मिल्क, यानी कि वो बेच तो रहा है क्लेम करके कि 1000 ml मिल्क दे रहा है, पर वो दे कितना रहा है, दे सिर्फ 900 ml रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ भी उसको फायदा होगा। और जब भी प्रॉफिट होगा
जब भी प्रॉफिट होने वाला है तो हमेशा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे विल बी पुटिंग अ स्मॉलर वैल्यू एंड राइट हैंड साइड पे विल बी पुटिंग अ लार्जर वैल्यू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एक तरह से हमारा सीपी बता रहा है और सीपी और एसपी का रेशियो ही बता रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यानी कि एसपी विल बी हायर, एसपी वाला साइड विल बी हायर इफ देयर इज अ प्रॉफिट फॉर डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। और डिसऑनेस्ट मिल्कमैन हमेशा क्या कोशिश करेगा, अपने एंड पे अपना प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा। हाँ, कभी कुछ और झोल झाल हो जाए तो वहाँ पे बात अलग है, तो वहाँ पे हमें ऑपोजिट भी लिखना पड़ेगा जहाँ पे उसका लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो एनी केस यहाँ पे क्या हो रहा है, ही इज गिविंग ओनली 900 ml मिल्क बट ही इज टेकिंग द प्राइस फॉर 1000 ml मिल्क। तो रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, 900 इंटू 1000, यानी कि 9:10 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से इफेक्ट आएगा 9:10 का। नेक्स्ट केस क्या है, ही ऑल्सो मिक्सेस सम वाटर टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 36 लीटर सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 50%। अब यहाँ पे हमें एक्जैक्टली पता नहीं चल रहा कितना वाटर उसने मिक्स किया है। द ओनली थिंग दैट इज गिवन इज कि सम वाटर ही हैज मिक्स्ड टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 36 लीटर। तो 36 लीटर्स इज टोटल मिक्सचर। ओके, यानी कि वो 36 लीटर्स का प्राइस ले रहा है। अब उसने एक्चुअल में कितना दिया है इसके बारे में वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। Okay, so that he makes a profit of 50%. If the cost of water is 20% that of the milk, then find the amount of water in the liters that he has mixed. Okay, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस पार्ट हमारा इफ एक्स इज कॉस्ट प्राइस तो वाई विल बी सेलिंग प्राइस, ये हमारा इफेक्ट आएगा, एक्स इज टू वाई का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो नेट में इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट टू नेट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपीज़ का आइटम है तो 150 पे सेल कर रहा है। अब रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 से बचा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इफेक्टिवली दिस इज 3x एंड दिस इज 2 इंटू 2 इंटू वाई, तो 3x अपॉन 4y दिस इज इक्वल टू 2/3। x अपॉन y कम्स आउट टू बी 8/9। 8 to 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो चीज़ नहीं होता तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वाटर इज 20% डेथ ऑफ द मिल्क। इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाटर इज फ्री, तो अगर वाटर फ्री होता तो क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल गया, यानी कि 8 रुपीज़ का आइटम वो 9 रुपीज़ पे सेल कर रहा है। और अगर वाटर फ्री होता तो यानी कि जो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा है किसकी वजह से मिल रहा होता, ये वाटर की वजह से मिल रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर फिक्स हो जाता है हमारा कि हमारा 1 रुपी एक्स्ट्रा है जो मिल रहा है वो वाटर की वजह से मिल रहा है, वही हमारा प्रॉफिट है, यानी कि 8 यूनिट्स मिल्क में उसने 1 यूनिट वाटर मिलाया होगा। क्लियर सी बात यहाँ पे होगी। ठीक है, तो खत्म हो जाता है क्वेश्चन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर, कि वाटर इज 20% देयर ऑफ मिल्क, यानी कि वाटर फ्री नहीं है इस बार, वाटर का भी अपना कॉस्ट है। तो हमें पहले वाटर का कॉस्ट और मिल्क का कॉस्ट दोनों को मिला के अपना एवरेज कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो वाटर एंड मिल्क, और लेट अस से सिंस वाटर का कॉस्ट इज 20% और 1/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ द मिल्क, तो एज्यूम कर लेते हैं मिल्क का कॉस्ट है 5 रुपीज़, वाटर का कॉस्ट हो जाएगा कितना 1/5 यानी कि 1 रुपी। कॉस्ट का रेशियो आ गया 1:5। अब क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। जब भी हमें कुछ इस तरह के रेशियो चाहिए जहाँ पे कि वैल्यूज एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एज्यूम करना है हमें क्वांटिटी का रेशियो, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट अस से क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है A:1, यानी कि इन 1 लीटर मिल्क वी आर मिक्सिंग A लीटर्स ऑफ वाटर। एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाटर इज A into 1, कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 5/1, तो A into 1 प्लस 5/1, A+5 इज टोटल कॉस्ट। बट ये टोटल कॉस्ट इसका आया है A+1 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो एवरेज कॉस्ट विल बी A+5 डिवाइडेड बाई A+1। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट पर लीटर, A+5 अपॉन A+1, दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट पर लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स बाई वाई रेशियो हमारा क्या आया था 8/9 का, यानी कि 8 रुपीज़ का आइटम था, अगर अगर उसका कॉस्ट वॉज 8 रुपीज़ तो ही वॉज सेलिंग एट 9 रुपीज़, इजंट इट सो? और मिल्क का कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़ है। देखो वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस स्टेटमेंट कि 20% हायर रेट पे सेल कर रहा है, तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें 20% हायर रेट को कंसिडर नहीं करना, दैट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड एंड वी फाइंड आउट एक्स अपॉन वाई दैट इज 8/9। ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर हमारा 8 रुपीज़ कॉस्ट है तो वो 9 रुपीज़ पे सेल कर रहा है, जबकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हो तब, क्योंकि 20% वाली चीज़ें हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है। ये बात हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं, जबकि वो अगर कॉस्ट पे ही बेच रहा होता तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, तो अगर वो कॉस्ट पे भी बेच रहा है तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज वो वाटर मिक्स कर रहा है मिल्क में, दैट इज वाई। ठीक है, तो वाटर मिल्क मिक्स करने की वजह से ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी व्हेन इज सेलिंग अ मिक्सचर दैट इज कॉस्टिंग हिम 8 रुपीज़। क्लियर है, तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या आएगा, इफ 5 रुपीज़ इज द कॉस्ट
अगर वो 5 रुपीज़ ले रहा होता कस्टमर से, तो उसका एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, A+5 अपॉन A+1, एंड ही इज टेकिंग 5 रुपीज़ फ्रॉम द कस्टमर. ठीक है, सो 5 रुपीज़ इज बेसिकली सेलिंग प्राइस एंड हिज कॉस्ट इज A+5 अपॉन A+1. CP, SP/CP का रेशियो क्या होगा, 9/8 होगा. क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर वो कॉस्ट पे दे रहा है, यानी कि 5 रुपीज़ पे दे रहा है कस्टमर को, सो हिज एवरेज कॉस्ट इज A+5 अपॉन A+1. तो रेशियो ऑफ SP/CP विल बी 5 अपॉन A+5 अपॉन A+1, एंड दैट इज इक्वल टू 9/8. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा अपना, 5 चला जाएगा यहाँ पे, 9/40 और A+1/A+5 हो जाएगा. A+1 अपॉन A+5 दैट इज इक्वल टू 9/40. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40A माइनस 9A, 31A विल बी इक्वल टू 45 माइनस 40. 31A is equal to 5. So A comes out to be equal to 5/31. Well, if A comes out to be equal to 5 upon 31. So in 1 liter milk, he will be mixing 5/31 liters water. Water और milk का रेशियो आ गया 5/31:1. मल्टीप्लाई बाई 31, तो 5:31 का रेशियो आ गया. If total mixture is 36 liters, 5 plus 31, 36 liters, so water is 5 liters in such a case. तो एक मिक्सर हमें 36 लीटर्स ही गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी दैट ही हैज मिक्स्ड 5 liters of water. आंसर विल बी दैट ही हैज मिक्स्ड 5 liters of water. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. ओके, अब यहाँ पे हम एलिगेशन भी चाहते हो तो अप्लाई कर सकते थे. एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो हमने एवरेज का पूरा कैलकुलेशन किया है ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते थे. कैसे अप्लाई करते हैं कि हमें पता है कि वाटर और मिल्क को मिक्स कर रहा है, एंड वाटर का कॉस्ट इज 20% दर दो मिल्क. इफ कॉस्ट ऑफ वाटर मिल्क इज इक्वल टू 5, कॉस्ट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1. और एवरेज कॉस्ट क्या आएगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे रेशियो क्या आया था हमारा, x/y वॉज 8/9, वेयर 8 वॉज CP एंड 9 वॉज SP. और अब हम बात किसकी कर रहे हैं हमारे लिए, बिकॉज ही इज सेलिंग मिल्क, इजंट इट सो, वो तो मिल्क के भाव पे बेच रहा है. ठीक है, सो उसका एक्चुअल कॉस्ट जो होगा, दिस वैल्यू इज द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जब वो वाटर और मिल्क को मिक्स कर रहा है, दिस इज हिज एक्चुअल कॉस्ट. और सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस विल बी ₹5. जब हम 8 और 9 की बात कर रहे हैं, तो दिस 9 इज ₹5, द सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क, क्योंकि वो मिल्क के कॉस्ट पे सेल कर रहा है. ठीक है, ये इस बात को अगेन इग्नोर करना है जब हम अभी इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं. तो ठीक है, क्योंकि जब वो मिल्क के कॉस्ट पे भी सेल करेगा, तब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं x/y में. ओके, सो दिस एक्चुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, भाई 8 अगर CP है तो 9 इज द सेलिंग प्राइस, तो 9 की वैल्यू क्या है, दिस 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 रुपीज, यानी कि 8 यूनिट्स विल बी 5 इंटू 8/9, यानी कि 40/9. तो दिस एवरेज विल बी 40/9. अब एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो पूरे सारी वैल्यूज को, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 9, दिस बिकम्स इक्वल टू 45, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 40. तो 40 माइनस 9 इज 31, 45 माइनस 40 इज 5, तो 5:31 का रेशियो आ गया वाटर और मिल्क का, यानी कि इन 31 लीटर्स मिल्क दे विल बी 5 लीटर्स वाटर, यानी कि टोटल 36 लीटर्स मिक्सचर में 5 लीटर्स वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा. दिस विल बी आवर आंसर. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर्स इन टोटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, cost price of 30 apples is equal to selling price of 24 apples or marked price of 20 oranges. Discount on 20 apples is equal to profit on 25 apples or discount on 50 oranges. If the cost price of an orange is 25% more than the cost price of an apple, then find a percentage profit earned if the shopkeeper sold 5 apples and 2 oranges. तो हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स और मार्क प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस. यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स, लेट अस से दैट इज CA, 30 टाइम्स ऑफ CA, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एप्पल्स और ऑरेंजेस दो की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 24 टाइम्स सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20 टाइम्स मार्क प्राइस ऑफ ऑरेंजेस. जब भी कभी ऐसा दिया हो तो हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, 30, 24 और 20 का एलसीएम ले लो, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 120. 30 times cost of apples is equal to 120, so cost of apples comes out to be equal to 4. 24 times selling price of apple is equal to 120, so selling price of apple comes out to be equal to 5, and 20 times mark price of orange is equal to 120, so that comes out to be equal to 6. यानी कि रेशियो आ गया for cost price of apple, selling price of apple and mark price of orange, that is 4:5:6. That is our first equation. Our second equation,
डिस्काउंट ऑन 20 एप्पल्स, तो 20 टाइम्स डिस्काउंट ऑन एप्पल्स दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 25 एप्पल्स, 25 टाइम्स प्रॉफिट ऑन एप्पल्स एंड दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 50 ऑरेंजेस, 50 टाइम्स डिस्काउंट ऑन ऑरेंजेस। अगेन 20, 25 एंड 50 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारा 100, तो 20 टाइम्स डिस्काउंट of apples is equal to 100, so discount of apples is equal to 5. Similarly, profit on apples will be 100 by 25, 4, and discount on oranges will be 100 by 50, that is equal to 2. So ratio आ गया for discount on apples, profit on apples and discount on oranges 5:4:2. ठीक है, अब हमें क्या नोन है, हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स का रेशियो है 4:5, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, बट प्रॉफिट ऑन एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें अपनी वैल्यूज को इन द अबव इक्वेशन, तब चीज़ें कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6 इंटू 4, अब चीज़ें कंपेरेबल हो जाएंगी। अब प्रॉपर्ली लिख लेते हैं उनको, फॉर एप्पल्स एंड फॉर ऑरेंजेस, CP, SP एंड MP। तो कॉस्ट प्राइस फॉर एप्पल्स इज 4 इंटू 4, दैट इज 16। सेलिंग प्राइस फॉर एप्पल्स इज 5 इंटू 4, दैट इज 20। तो प्रॉफिट इज 4 रुपीज़, और अब ये वैल्यूज भी कंपेरेबल हैं बिकॉज प्रॉफिट इज 4 रुपीज़ हियर। अगर प्रॉफिट हमारा 4 रुपीज़ है एप्पल्स का, तो डिस्काउंट ऑन एप्पल्स इज 5, मार्क प्राइस -5 इज इक्वल टू 20, तो 20 + 5 यानी 25 विल बी मार्क प्राइस ऑफ एप्पल्स। ओके, सिमिलरली 6 इंटू 4 यानी 24 इज अवर मार्क प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, एंड डिस्काउंट ऑन ऑरेंजेस इज 2 रुपीज़ इन दिस केस। ये सारी वैल्यूज रेशियो में है, ये ध्यान रखना। तो 22 रुपीज़ विल बी अवर सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। एडिशनली हमें क्या गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल, यानी कि 16, 25% ऑफ 16 विल बी 4, तो 16 + 4 यानी 20 रुपीज़ विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल। अगर 20 रुपीज़ इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल, तो प्रॉफिट ऑन 20 रुपीज़ इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, तो प्रॉफिट ऑन ऑरेंज विल बी 2 रुपीज़, 2 यूनिट्स। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड इफ द शॉपकीपर हैज सोल्ड 5 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर 5 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस क्या होगा? 5 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस वैल्यू 5 × 16 प्लस 2 ऑरेंजेस का 2 × 20, दैट टोटल इज 120। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स का 5 × 20 प्लस 2 ऑरेंजेस का 2 × 22, दैट इज 144। 120 का आइटम ही इज सेलिंग एट 144 रुपीज़, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 24 रुपीज़ ऑन 120, तो 24/120 प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1/5 यानी कि 20%। दिस विल बी 20% प्रॉफिट इन दिस केस। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट होगा। आई बिलीव जो भी बातें हम डिस्कस करें सबको समझ में आएगा, और फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट आउट। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई बिलीव सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट सेशन पे से विल बी स्टार्टिंग अलजेब्रा क्वेश्चंस एज वेल। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।